Hello students, this is Bhashwati teacher. Welcome to my channel Learning English with Bhashwati teacher. Today we are going to do lesson number 1.4. It's a poem written by William Shakespeare and the name is All the World's a Stage. Okay, so let us start. All the World's a Stage. William Shakespeare was an English poet, playwright and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's prominent dramatist. He is often called India's national poet and the bard of Avon. This poem is taken from his play As You Like It. Here he compares the world to a stage where the drama of human life is enacted. ओके सो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में आज तक के जो सबसे ग्रेटेस्ट राइटर हैं वो विलियम शेक्सपियर हैं एंड उनको बार्ड ऑफ एवॉन कहा जाता था. ही वॉज कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड बार्ड का मतलब होता है स्टोरी टेलर. ओके, तो ये जो पोएम है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, इसको एज यू लाइक इट प्ले में से लिया गया है और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को एक स्टेज के साथ कंपेयर किया है. द एंटायर पोएम इज़ मेटाफोरिकल एंड ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ एनेक्टेड. इस पोएम को CBSE के बुक में द 7 स्टेजेस के नाम से भी जाना जाता है. नाउ लेट अस गो अहेड. All the world's a stage and all the men and women merely players. They have their exits and entrances and one man in his time plays many parts. His acts being 7 ages, at first the infant mewling and puking in the nurse's arms, then the whining schoolboy with his shell and shining morning face creeping like snail unwillingly to school, and then the lover sighing like furnace like a woeful ballad made to his mistress's eyebrow, then a soldier full of strange oaths and bearded like a pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth, and then the justice in fair round belly with good capon line, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. The sixth stage shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose well saved, a world too wide, and for his shrunk shank and his big manly voice. Turning again toward childish treble pipes and whistles in his sound, last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. William Shakespeare. Okay, now word to word I will try to explain this poem to you. All the world is a stage. पोएट कहते हैं कि ये पूरी दुनिया जो है वो एक रंगमंच है. एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स, और यहाँ पे जितने भी आदमी और औरत हैं ये सब यहाँ पे प्लेयर्स मतलब एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं. हम सब लोगों को भगवान ने एक रोल प्ले करने के लिए भेजा है इस दुनिया में. दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस. एग्जिट का मतलब होता है बर्थ एंड सॉरी एंट्रेंस का मतलब होता है बर्थ एंड एग्जिट्स का मतलब होता है डेथ. लाइक सम पीपल दे लिव फॉर 80 years 90 years, and some people they live only for 10 years 20 years 30 40. Different people, they have different lifespans. So people have their own entrances and own exits, and one man in his time plays many parts. और एक इंसान को अपने जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग रोल प्ले करना पड़ता है. जैसे बचपन में आप किसी के बच्चे होते हो, देन somebody's ब्रदर और सिस्टर, देन बड़े होने के बाद लाइक यू हैव सो मैनी रोल्स टू प्ले. किसी के अंकल आंटी मामा मामी चाचा चाची, यू हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले. हिज एक्ट्स बीइंग 7 ages, और ये जो हमारे जीवन में टाइम आते हैं ये 7 अलग टाइप के हमारे एजेस आते हैं. एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले हम एक जब छोटे बच्चे इन्फेंट होते हैं, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स. म्यूलिंग का मतलब होता है छोटे बच्चों की तरह रोना, एंड प्यूकिंग का मतलब होता है उल्टी करना. तो तब हम लोगों को कोई हमारे रिफ्लेक्सेस पे कंट्रोल नहीं होता, तो हम लोग नर्स के ही गोदी में या जिसके भी हम लोग गोदी में हैं हम लोग वहीं पे रोते रहते हैं, वहीं पे उल्टी करते हैं. एंड वी डू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स, या जो हमको बड़ा करने वाला होता है हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है. सेकेंड स्टेज है देन द वाइनिंग स्कूल बॉय. वाइनिंग का मतलब है कि नखरे करने वाला. एक स्कूल का लड़का जो स्कूल जाने के लिए रोज़ बहाने करता है कि नहीं जाऊंगा,
विथ हिज सैशल, सैशल मतलब स्कूल बैग, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस। अब छोटा बच्चा है, स्कूल का बच्चा है, तो उसका चेहरा बिल्कुल एकदम ब्राइट मॉर्निंग की तरह फ्रेश उसका चेहरा है। लेकिन स्कूल जाने के लिए ही इज़ क्रीपिंग लाइक स्नेल, ये एक सिमिली का एग्जाम्पल है। मतलब वो स्नेल के स्पीड पे धीरे धीरे काम कर रहा है, अनविलिंगली टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाना चाहता। एंड देन द लवर, तीसरा स्टेज है जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, तो एक प्रेमी का स्टेज है, साइंग लाइक फर्नेस। अगेन दिस इज सिमिली, मतलब कि एक भट्टी में जितनी आग होती है, तो इस लवर के अंदर उतनी ज़्यादा आग है। विथ अ वूफुल बैलड, वो अपनी प्रेमिका के लिए एक दुख भरा गीत गा रहा है, मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो। यहाँ पे मिस्ट्रेस जो है वो है प्रेमिका, तो वो प्रेमिका की याद में एक दुख भरा गाना गा रहा है। देन अ सोल्जर, उसके बाद फोर्थ स्टेज है जब वो लवर कॉलेज वगैरह से पास आउट होके जब उसको आर्मी में ये रिक्रूट किया जाता है। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि हर घर के यूथ को मिनिमम 4-5 साल तो आर्मी में देने ही पड़ते थे। तो फिर उसके बाद वो सोल्जर बन जाता है। सोल्जर की ट्रेनिंग होने के बाद ही इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, मतलब कि अपनी मातृभूमि के लिए कसम खाता है, एंड अलग अलग टाइप के कसम खाता है। देन बियर्डेड लाइक अ पार्ड, अब उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी है और वो साइड से बिल्कुल लेपर्ड, मतलब कि चीता की तरह दिखता है। जेलस इन ऑनर, अगर दूसरे की तरक्की हो गई तो फिर वो उसके साथ compete करता है, एंड हेंस ही इज़ जेलस इन ऑनर। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, अब यूथ है, यंग है, तो झगड़ा करने के लिए बस इसको एक बहाना चाहिए, मौका चाहिए। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और बबल रेपुटेशन मतलब वही छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाना, और वो बुरा आई मीन टू कीप दैट रेपुटेशन, रेडी टू फाइट एनी टाइम, इवन इन द कैनन्स माउथ, मतलब तोप के सामने भी अगर खड़ा कर दो तो दैट पर्सन इज़ रेडी टू फाइट। वाई? बिकॉज ही इज़ इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ। उसके बाद फिर ये जवानी का फेस ख़त्म होके देन द जस्टिस, अब वो कोर्ट का जज बन चुका है। इन फेयर राउंड बेली, अब वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, अब उसकी पेट जो है वो काफ़ी उसकी तोंद निकल गई है। विथ गुड केपन लाइंड, और उसका जो पैंट है वो बलून पैंट हो गया है। विथ आईज सीवियर, अब वो हाथ पैर से ज़्यादा काम नहीं करता, वो अपने दिमाग से ज़्यादा काम करता है, इसलिए अभी उसकी आंखें भी बहुत ही सीवियर हो गई है, बिकॉज नाउ ही इज़ अ थिंकर। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और अब इसने दाढ़ी जो है वो भी एकदम फॉर्मल, नाउ ही लुक्स वेरी जेंटल एंड वेरी स्वाव। बियर्ड मतलब दाढ़ी, वो फॉर्मल कट की दाढ़ी उसने बनाई हुई है। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, अब वो बात बात पे आपको बहुत ही वाइज ऐसे इन हिंदी मराठी भी से ना म्हण, हर चीज़ में वो आपको बहुत ही अक्कल वाली वो आपको कहावत सुनाएगा, दैट इज सॉस। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस मतलब नए नए एग्जाम्पल्स, बिकॉज नाउ ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, उन्हें जीवन का बहुत एक्सपीरियंस आ गया है, तो ही नोज़ सो मेनी सेइंग्स एंड ही नोज़ मेनी एग्जाम्पल्स, तो वो आपको सुनाएगा। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, तो वो अपना पार्ट प्ले करता है। फिर सिक्स्थ एज जो है इट शिफ्ट्स इनटू लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून, अब इसमें वेट, बुढ़ापा आ गया है, वेट कम हो गया है, वो जो इंसान है वो दुबला हो गया है, और अभी उसकी पैंट उसको ढीली होने लगी है, दैट्स वाई इट इज़ रिटन एज स्लिपर्ड पैंटलून। विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, अब उसको चश्मे के बिना कुछ दिखता नहीं है, इसलिए नाक के ऊपर हमेशा चश्मा रहता है। एंड पाउच ऑन साइड का मतलब है कि आई थिंक ही इज़ इनकॉन्टिनेंट, ही कैनॉट गो टू वॉशरूम ऑफन, तो शायद कैथेटर लगा कर रखा गया है, तो दैट इज़ पाउच ऑन साइड। तो हिज यूथफुल होस वेल सेव्ड एंड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक। ओके, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, मतलब आवाज़ जो है वो बहुत ही ऐसे मर्दानी टाइप आवाज़ है, फॉर हिज श्रंक शैंक। देन दिस अ वर्ल्ड टू वाइड, अब वो यूथफुल होज ये सब उसने बचा कर रखा हुआ है। टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, अब उसकी आवाज़ में बच्चों की तरह एक कपकपाहट है, और जब वो बात करता है तो गले में से एकदम ऐसे ऐसे विसल की आवाज़ निकलती है, पहले जैसा उसकी आवाज़ नहीं रही। लास्ट सीन ऑफ ऑल द दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन, और अभी सेवेंथ वाले स्टेज पे अब वो बिल्कुल बेड पे पड़ा हुआ है, मतलब कि डेथ बेड पर है। एंड स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री जो है अब वो ख़त्म होने वाली है,
ये उसके जीवन का सेकेंड चाइल्डिशनेस है, क्योंकि आज वो फिर से किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द सर्वाइवल। एंड मियर ऑब्लिवियन मतलब ही हैज़ फॉरगॉटन, आज वो टोटल सब कुछ भूल चुका है, अपने जीवन की सारी बातें। सैंस टीथ, आज उसके पास सैंस मतलब विदाउट, आज दांत नहीं है, आंखें नहीं है, टेस्ट नहीं है, सैंस एवरीथिंग, ही हैज़ नथिंग। सो इट इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. Now I will go ahead with the part 2 of this poem.